गायक एक सफर, authored by Dr. Avinash Rai Khanna and beautifully compiled through an inside interview by Dr. Jyoti Verma. And the day is also special because today is Children's Day. So happy Children's Day, everyone. We are lucky to have our distinguished guest on this very special day. So our first one gratitude on this very special day goes to Shri Sudesh Kumar ji, IPS, former Director General of Police. A huge round of applause for our chief guest of the day. And students, sir has many. First of all, I would like to mention the educational qualifications of sir. BA Honours with Gold Medalist, MA Economics, MBA Finance, MA Public Policy and Sustainable Development, and Advanced Diploma in French Language. Not only that, sir has command over the languages Punjabi, Hindi, Malayalam, if we talk about Indian languages, and then in foreign, English, French, Swahili and Arabic. So once again, a huge round of applause that sir is here among us all. And sir has many awards and medals to his credit. President's Police Medal for Distinguished Services in 2013, Police Medal for Meritorious Services in 2003, तालियां रुकनी नहीं चाहिए. United Nations Peacemaking Medal in 2009, Police Special Duty Medal in 2013, and the list is very long. Commendation Desk in 2002 by Director General Central Industrial Security Force, Commendation Roll in 2011, 2014 and 2016. Then Certificate of Commendation in 1998 and 2020 by Director General of Police Kerala. Appreciation letters by Chief Minister Meghalaya, Director General of Police Meghalaya, Director General of Police Kerala and Director General Border Security Force. A very warm welcome, sir. A heartiest welcome to our own Shri Avinash Rai Khanna ji. A huge round of applause to welcome sir. We have among us Secretary DAV College Managing Committee Shri R.M. Bhalla ji, Vice President Shri Y.P. Joshi ji, Member Society Dr. Jasveera Anup Minhas and Retired Vice Principal Government College. Very warm welcome, ma'am. And a very warm welcome to our guest, Advocate Shri S.P. Rana ji, Shri A.S. Kang ji, Shri Surinder Diwan ji, Shri Navdeep Sood ji, Shri Umesh Jain, Shri Manu Bajaj and all the distinguished guests present over here. So before we start today's function, I would love to request our chief guest and guest of the day to please come forward for lamp lighting ceremony. Students, please stand up on your respective seats. All the students, please stand up on your respective seats. I request everyone, please recite Gayatri Mantra. जब तक की ज्योति प्रज्वलित हो रही है, काइंडली रिसाइट गायत्री मंत्र अलॉन्ग विद ज्योति. भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. ॐ
Principal Ma'am and Dr. Jasveera Anup Manhas. I request Ma'am to please present the bouquet to Dr. Jasveera Anup Manhas. A huge round of applause for this green welcome. Floral welcome will now be presented to Shri Avinash Rai Khanna ji. Thank you, ma'am. Thank you so much. Now I request our worthy principal, ma'am, Dr. Vidhi Bhalla, to please present formal welcome to our guest of the day. आदरणीय श्री अविनाश राय खन्ना जी, चीफ गेस्ट श्री सुदेश कुमार जी, IPS, फॉर्मर DGP, चीफ गेस्ट डॉक्टर जसवीरा मिन्हास, वाइस प्रिंसिपल रिटायर्ड गवर्नमेंट कॉलेज, बहुत ही पतवंते सज्जन, टीचर्स, स्टूडेंट्स, आज सारे असी इकट्ठे होए हैं डॉक्टर अविनाश राय खन्ना जी की बुक रिलीज़ से, जिहड़ी बुक एक सफ़र सर दी बुक है। ये सर दी 7th बुक है और मैनू मौका मिले सर दी 6 बुक्स के बारे भी पढ़न का। उस विच भी आपां देखिया सर ने ज़्यादातर जिहड़ी बुक्स हैं वो समाज के प्रति, उन्हां दे समाजिक प्रॉब्लम्स, इशूज़, उन्हां नूं लैके और अपने लाइफ एक्सपीरियंसिस नूं लैके लिखी हुई है। समाजिक चिंतन सर दी बुक है। उस विच भी सर ने छोटी छोटी समाज की प्रॉब्लम्स और किमें उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए उस बारे दसिया। वो बुक एज अ सिलेबस बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विच इंप्लीमेंट हुई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, HP यूनिवर्सिटी, GNDU विच एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम वो बुक सर दी चल रही है। सर दी एक बुक एक्सपीरियंसिस ड्यूरिंग कोविड भी ऐसी देखी और इसी मंच से वो बुक रिलीज़ हुई सी। उस विच भी सर ने अपना कोविड दौरान की एक्सपीरियंस रहा उन्होंने सर ने बहुत अच्छे तरीके नाल दसिया, लाइफ एक्सपीरियंसिस दसे। और जदों मैं ये बुक सर दी पढ़ रही सी एक सफ़र, तो सर दे जीवन के बारे पता लग्या। सर दी बेटर हाफ मैडम मीनाक्षी जो सर दे नाल हमेशा कदम नाल कदम मिला के चले हैं। सर दी डॉटर जड़े कमर्शियल पायलट हैं, सर दे बेटा, और सर दा पूरा जीवन जदों मैं देख रही सी बुक विच पढ़ रही सी, तो सर ने हर एक पल ते समाज विच छोटे ग्राउंड लेवल ते काम किया है और जिथे जिन्हों जरूरत लगी है, चाहे वो लड़कियां ली सी, उन्हों की शिक्षा ली सी, या फिर एक जगह पे मुकेरियां का एक इंस्टांस सीगा जिथे एक ट्रेन इंसीडेंट हो गया सी, उत्थे जिहड़े 22 इफेक्टेड बच्चे सी, सर ने सरकार तो रिक्वेस्ट करके वो 22 बच्चों ली, उन्हों के फैमिलीज़ ली सरकारी नौकरी तक लगवाई। तो मैनू लगता सर वो जी 22 फैमिलीज़ है वो भी कभी नहीं भूल सकदियां जिन्हां दा रोज़ी रोटी तुहाडे इनीशिएटिव के करके चली है। होर भी अगर मैं छोटे छोटे इंस्टेंसिस सानू लग बहुत छोटे रहे हैं, पर किसी की फैमिली ली, किसी के परिवार ली वो बहुत वड्डी चीज़ है। सर दी पिछे आप एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई जिहड़ी एक बच्चे दे सीगी गोल्ड मैडल का दहेज, वो भी एक रियल स्टोरी ते सीगा कि किवें एक हैंडीकैप बच्चा और उन्होंने फैसिलिटेट करके उदा जीवन संवरिया और उस विच सर दा कैसा इनिशिएटिव सीगा उससे पूरी डॉक्यूमेंट्री बनी जिहड़ी अमित सागर मित्तल जी ने इत्थे ही इसी मंच पे रिलीज़ की सी। तो सर दा पूरा जीवन मैनूं लगता है समाज लिए ही सर ने पूरा अपना जीवन जड़ा है वो समर्पण किया है और सर दे जीवन तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहा है। तो आज सर दी ये बुक रिलीज़ से
मैं सर ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ कि सर ਦੀ 7th बुक ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। और इस मैं पूरी मैनू उम्मीद है कि ये बुक के नाल पढ़ के साढ़े सारे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी कि असी भी अगे समाज में किवें अपना कंट्रीब्यूशन एक अपना रोल जोड़ा है निभाना है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जैसे कि मैम ने बताया, देयर आर मैनी बुक्स जो सर के क्रेडिट में है, और एक यहीं रिलीज़ हुई थी जहाँ पे एक्सपीरियंसेस शेयर किए गए थे ड्यूरिंग कोविड। तो सर के लिए अगर मैं लाइफ स्केच से स्टार्ट करते हैं उनके कैरियर से। सर, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन इन कॉमर्स एंड लॉ, ही डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टू द पब्लिक सर्विस। Sir has served as a member of Punjab Legislative Assembly, member of Parliament in the Lok Sabha, and later as a member of Rajya Sabha. Within Bharatiya Janata Party, he has held significant responsibilities, serving as State President of BJP Punjab and National Vice President. Along with politics, Dr. Khanna has been deeply involved with the Indian Red Cross Society, contributing tirelessly to humanitarian causes and community welfare. प्रेरणादायक एक सफर. This book reminds us that life's true success lies not merely in personal achievements but in serving others and uplifting our nation. The book Ek Safar captures Dr. Avinash Rai Khanna's journey of service and vision, one that will ignite the flame of inspiration in every reader's heart. It's not merely a biography but an exposition of the values that make him a true social servant and exemplary personality. So now I would like to quote few incidents, real life experiences जो सर ने दूसरों की अपलिफ्टमेंट के लिए एफर्ट्स किए हैं। पहले हम होशियारपुर के आसपास की बात करते हैं। सर ने जब खुद अपना कैरियर भी शुरू किया इन 1998 बतौर वकील जब शुरू किया, तो वो सपरिवार जब होशियारपुर में आके रहने लगे, तब आके उन्होंने कृष्णा मोहल्ले में एक मकान किराए पे लिया और कचहरी में आने जाने के लिए 200 रुपये का एक पुराना साइकिल खरीदा। उन दिनों एक फेरी वाला जो कि फेरी लगाने के लिए पैदल ही घूमता था, तो वो साइकिल भी सर ने उसको ही दे दिया। तो आप ये सोचो कि सर के पास उस टाइम वो कन्वेंस एक थी जो सर ने उसको दे दी, और उसके बाद कुछ समय बाद फिर एक साइकिल खरीदा। कुछ साल बाद एक पुराना स्कूटर खरीदा, वो भी किसी के कहने पर उन्होंने एक सेवक को भेंट कर दिया। सो अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है जब आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज से आप किसी की मदद करते हो। एक यहाँ पास में गांव लसाड़ा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्होंने 101 कन्या पूजन करवाया। जब उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया तो वहाँ पर मौजूद लड़कियों ने कहा कि सर, आपने भाषण तो बहुत अच्छा दिया, लेकिन वो पढ़ना चाहती हैं और घरों से ज़्यादा दूर सैलागुड होने के कारण उनको घर वाले पैदल या बसेस में जाने की अनुमति नहीं देते। तो उसी वक्त उन्होंने गांव जैजो में एक कॉलेज बनवाने की घोषणा की, एक ट्रस्ट बना और वहाँ पे वो कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ। मैं बच्चों से रिलेटेड इंसिडेंट यहाँ पे उठा रही हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोला जैसे कि आज चिल्ड्रंस डे है। एक बार सर बिहरा गांव के एक स्कूल में अपना फ़ोन नंबर बच्चों को देकर गए और उनसे वायदा किया कि उनके किसी भी कार्यक्रम में वो उनके पारिवारिक सदस्य की तरह शामिल होंगे। तो एक छोटी बच्ची थी, उसकी सिस्टर की मैरिज थी, तो उसने अपने घर वालों को बोला कि खन्ना सर मेरी बहन की शादी में आएंगे। तो उसके फैमिली मेम्बर्स ने उसका बहुत मजाक उड़ाया कि एक सांसद इस तरह से कैसे किसी कार्यक्रम में आ सकता है, और वो भी एक टेलीफोन कॉल के ऊपर। बट उसकी फ़ोन पर इसके विश्वास को देखकर खन्ना जी ने उसके घर शादी में पहुंच गए और छोटी सी बच्ची ने उंगली पकड़कर अपने परिवार के सामने उन्हें खड़ा कर दिया, जिस पर सारा गांव आश्चर्यचकित रह गया। इसी प्रकार अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आई, जैसे यहाँ होशियारपुर की एक लड़की का ही जिक्र है जो कि क्रिकेट की खिलाड़ी थी, उसका चयन नेशनल कैंप 4 क्रिकेट के लिए हुआ। उसको खेलने के लिए विदेश जाना था, बट किसी भी कारण से उसका पासपोर्ट नहीं बन रहा था। तो उस लड़की का पासपोर्ट चंद दिनों में बनवाकर उसे कैंप भेजा
और वो लड़की उस टीम की उप कप्तान बनी। मुझे लगता है ये इंसिडेंट तो शायद सबको पता होगा जो होशियारपुर से हैं, कि खन्ना जी के जीवन की एक घटना फिर से स्मृति में आई कि गढ़शंकर की सड़क निर्माण हेतु खन्ना जी ने बूट तक भी पॉलिश किए, और अभी शायद रिसेंट भी आपने सुना होगा ड्यूरिंग फ्लड्स भी उन्होंने बूट पॉलिश तक किए। सड़कों पर पैदल यात्राएं की तथा यात्रियों के द्वारा आम जनता की मांगें पूरी करने के लिए हरमिंदर साहब से अटारी तक की यात्रा, जिसका आधार था पाकिस्तान जेल में बंदी जो भारतीय कैदी थे। फिर उसके बाद सड़क बनाओ या गद्दी छोड़ो मुहिम चलाई नंगल से तलवाड़ा तक की। ये स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ एक एक इंसिडेंट कोट कर रही हूँ, उनकी पर्सनल लाइफ से लेके सोशल लाइफ तक। Thank you, sir. Thank you. Sir, please be on the stage, sir. And एक और चीज़, ये और भी एफर्ट कर रहा है NRIs के थ्रू कि जितनी और लड़कियों की मदद हो सके, या इवन लड़कों की भी जो जिनके फादर नहीं है, पेरेंट लेस हैं, तो उनके लिए 7-8 स्टूडेंट की ईयरली अगर हेल्प हो सके तो ही इज़ ट्राइंग हिज बेस्ट। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਗੜਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ IPS ਬਣੇ, ਕੇਰਲਾ ਕੈਡਰ ਮਿਲਿਆ। ਰਿਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਕੱਲਾ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇਸ कार्यक्रम 'ਚ ਆਏ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਮਿਸਿਸ ਅਨੂਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਬੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਲਮਪੁਰ ਸੀਗਾ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ AI 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਵੀ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਕੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੁੱਕ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਬੱਚਿਓ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਦਾ, दूसरा है मेरे प्रोफेशन का, और तीसरा है मेरी सोशल एक्टिविटी का, चौथा है पोलिटिकल एक्टिविटी। तो कुछ रेफरेंस साढ़े स्टेट सैकटरी ने दिते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा समझ लेना, किताब इत्थे रखी जाएगी, पढ़ भी लियो, लेकिन कुछ गल्लां जरूर मैं तुहानूं शेयर करना चाहना। फैमिली लाइफ के बारे मैं एक गल दसना चाहना कि आम तौर पर परिवारां 'च लड़ाई किस गल दी हुंदी है? बोलो बच्चों, है पैसे ਲਈ, प्रॉपर्टी ਲਈ, इस गल की लड़ाई होंगी है। ठीक है, तो मेरी जिंदगी च भी एक मौका आया। वो की मौका सी, मैं अपने ताया ताई का अडॉप्टेड सन सीगा, किताब के उन्होंने फोटो हैगी है। तो ड्यूरिंग स्टडी मैं हले पढ़ता सी, BCom करता सी, उन्होंने डेथ हो गई। तो 2 ताया जी होर, मतलब उन्होंने तो छोटे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, मैं उन्होंने को ही रह के पढ़िया। उन्होंने मैनू मेरी एजुकेशन का सारा खर्च किया, मैनू वकील बना दिता। लेटर ऑन परिवार जिदा वंड होंगी है, पार्टीशन होंगी है, जो पार्टीशन हुई तो उन्होंने 3 हिस्से पार्टीशन की। एक मेरा ताया ताई करके, 2 उन्होंने हिस्से। पर मेरा मन नहीं सी कि मैं लवां। उस वे 16 लाख रुपए 182 वो अमाउंट बनता। तो
उन्होंने डीड बनाई, मेरे साइन करन आए। मैं कहा जी मैनू सोचन दे। साढ़े उत्थे जज साहब लगे हुए सी, अच्छे दोस्त सी मेरे। मैं उन्होंने चल गया, मेरे तो वड्डे भी सीगे। उन्होंने राय की, वो कहते ने अविनाश प्रॉपर्टी जी है ना, ये जिंदगी का बहुत वड्डा सिक्योरिटी होंगी है, ये छड्डी दी नहीं। मैं दूसरे दिन सरहंद अपने नानके चला गया, मामा जी के बच्चों ने सलाह की, उन्होंने भी राय दी कि नहीं प्रॉपर्टी छड्डी दी नहीं। मैं वापस आया क्योंकि मेरा मन है नहीं सी, मैनू एको ही सीगा कि इन्होंने मैनू पढ़ा के लिखा के काबल करता। मैं आके उन्होंने कहा कि देखो मैं कुछ नहीं लेना, तुसीं दो हिस्से वंड, दो हिस्से वंड के मैं साइन करके दे। दुकान सीगी, दुकान के वहीयां च पैसे भी सीगे। वो कहते ये तो ले ला। मैं कहा नहीं, जब मैं उस छड़ता ये भी मैं की करना। फिर मेरे ताया जी कि 10 रुपये महीना जमा कराते होंगे सी, तो रिवाज सीगा। हुण तो बच्चे पता नहीं कि रिवाज है कि नहीं है, सुरेश जी को तो पता होना कि साडे पेरेंट्स एक सिक्योरिटी पर्पज लिए 10 रुपये महीना जमा कराना बैंक, तो 9000 रुपये बन गया उस वेले। तो कापी मैंने फड़ाती कि ये पैसे कढ़ा ला। मैं कहा बिल्कुल ठीक है, ये कढ़ाऊँगा, लेकिन नाल तुसी भी 9-9000 रुपया पा के ताया ताई के नाम से कमरा बनावांगे। सो मैं वो भी नहीं लिया। तो इस करके जी अज लड़ाई जिस काम करके होंगी है, अपने जीवन कोशिश की है कि परिवार जोड़ा है अज इज्जत करते हैं, सब कुछ हो रहा। फिर है पेरेंट्स। मैं जो हुशियारपुर शिफ्ट किया उदों पेरेंट्स भी कह के आया कि मैनू थोड़ी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं चाहिए, और मैं लिया भी नहीं। वह मैनू रिजल्ट की मिले, जिदा मेरे फैमिली बारे थोनों दसिया गया कि मेरी बेटी पायलट बन गई, मेरा सनला MD डॉक्टर है, मेरा बेटा एडिशनल एडवोकेट जनरल हरियाणा है, मेरी डॉटर इन लॉ भी डॉक्टर है। सो ये मैं समझदा कि उस चीज़ का रिटर्न। दूसरी प्रोफैशनल लाइफ, मतलब एक इंस्टांस दसूँगा, जे थोड़े परिवार चो कोई वकील है तो एक वकील साहब साढ़े को बैठे ने, ये मेरे वकील भी है इनकम टैक्स के। एक गल आम तौर पर कहती कि जी वकील जोड़ा है वो अपनी फीस लैके काम करता, प्रोफैशनल है भी है, डॉक्टर होएगा अपनी फीस लेगा, वकील होएगा अपनी फीस लेगा। लेकिन दूजी नाल गल कहते कि वकील कभी फीस नहीं छड्डदा। गल भी ठीक है, जब फीस मुका ली छड्डनी क्यों। लेकिन मेरे जिंदगी च बहुत इंस्टांस है, एक इंस्टांस तुहानूं शेयर करूँगा। एक बहुत ही सधारण व्यक्ति आके मेरे नाल फीस सैटल करके चला गया, पर मैनूं लगदा नहीं सी कि मेरी फीस दे पाएगा। लेकिन दूसरे दिनों पैसे लेके आ गया, सारी फीस। तो मैं उन्हें पूछदा कि ये तू पैसे कित्थों लैके आया? कहते थानू की, तुसी फीस लाओ काम करो। मैं कहा नहीं, आप 2-3 साल केस चलना, मिलना बरतना, पर तू ये पैसे कित्थों लैके आया? उन्हें मैनू कहते मैं उधार लैके आया। मैं कहा हाले केस खत्म नहीं होया तो दूजा तू शुरू कर लिया। मैं कहा फड़ फीस वापस, तो जिन्हों भी तू पैसे उधार लिया वो कोल पैसे मोड़ तो अपना परनोट वापस कर। सो एक इंस्टांस है, बाकी मैं मैक्सीमम कंप्रोमाइज़ कराने की कोशिश की है केसेस के। एक मेरा रिकॉर्ड भी रहा, मैंने जजेस भी कई बार कहते थे कि जी इस केस के तू MLA है, ये अच्छी लगता, मैं कंप्रोमाइज़। तीजा सोशल लाइफ, जिदा हुणी साडे एंकर ने एक स्टेट सैकटरी ने एक उदाहरण दिता कॉलेज का। मैनू खुशी है कि उस कॉलेज चों पढ़ के अज जो पहला बैच निकलिया, 18 साल असी वो कॉलेज एक मंदिर चलाया, 3 साल असी वो कॉलेज एक स्कूल चलाया। फिर किसी सज्जन ने देखा कि बहुत वधिया काम कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं साडे। बहुत मानयोग श्री अविनाश राय खन्ना जी, साडे प्रेस्टीजियस चीफ गेस्ट मिस्टर सुदेश जी IPS, सारे ऑगस्ट गैदरिंग, members of the managing committee, principal मैडम बेटी भल्ला, टीचर्स ऑफ B.Ed कॉलेज और प्यारे विद्यार्थियों, आज बहुत खुशी का दिन है इस करके कि आज चिल्ड्रंस डे है। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे सब तो पहला। और बच्चों, आज थोड़े इस दिन पे इस तो ज़्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं सी हो सकता कि एक किताब इहो जी रिलीज़ की गई इत्थे थोड़े सामने उन्हां दे हत्थां तो जिन्हां नूं असी
बहुत ज़्यादा इज्जत सम्मान ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖੰਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। तो स्टूडेंट्स, जिंदगी में पढ़ना एक चीज़ है, तालीम हासिल करना एक चीज़ है, पर जिंदगी में ये समझ जाना कि कुछ असूल, कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ इदां दे सिद्धांत थानू अपने लिए बनाने पैने हैं जिहदे नाल तुसी अपना निजी अपने आप नू एज अ पर्सनैलिटी, थोड़ी फैमिली, ਤੁਹਾਡਾ समाज, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਐਂਡ ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਚੇਂਜ ਦ ਥਾਟ। क्यों ना असी इस तो पलट सोचिए कि असी की कर सकते हैं अपने कॉलेज लिए, असी की कर सकते हैं अपने पेरेंट्स लिए। व्हाट कैन वी डू फॉर दिस कंट्री? एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स, यही देश स्वर्ग बन जाएगा। लोग हिंदुस्तान की मिसाल देंगे, इंडिया की मिसाल देंगे जे इत्थे दा हरेक बच्चा जिहड़ा कल दा भविख है वो इन्हां चीज़ों नूं समझ जाए। एंड स्टूडेंट्स, बिकॉज आज बुक रिलीज़ कर रहे हैं, ऑल्सो बिकॉज कि बहुत प्रोलिफिक राइटर रहे ने खन्ना साहब, इन्होंने कितनी सारिया किताबां लिखियां अपनी मशरूफियत के बावजूद। आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स ऑल्सो वन थिंग कि बच्चों किताब ना लिखो पर जर्नलिंग करनी शुरू कर दो। जर्नलिंग मीन्स एक डायरी, एक नोटबुक अपने को रखो। थोड़ा ब्रेन एक पावर हाउस ऑफ थॉट है। रोज़ थोड़े दिमाग में कुछ इहो जिहियां बहुत इंपॉर्टेंट थॉट्स आंदियां ने जिन्होंने यू कैन जस्ट पेन डाउन। दे आर फ्लीटिंग मोमेंट्स, फ्लीटिंग थॉट्स। फ्लीटिंग मीन्स एक मिनट लिए आती है, जे ना उन्होंने पकड़ोगे वो गायब हो जाएगी, इट विल बी गॉन फॉर एवर। सो उसको तुसी प्लीज़ जर्नल इट आउट, प्लीज़ राइट इट। उन्होंने लिख के वैन यू गो बैक टू दोज थॉट्स, जब तुसी वापस जाके उन्होंने पढ़ोगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन इन लाइफ, बहुत सारिया चीज़ों तो। और उस तो बाद तुसी रियलाइज़ करोगे कि यू आर मेकिंग योर सेल्फ अ लार्जर पर्सनैलिटी, अ बिगर पर्सनैलिटी। सो विद दिस विश, विद दिस डिज़ायर कि साडे बच्चे जिहड़ा कि साडे देश का भविख है, ये सारिया चीज़ों तो बहुत कुछ हासिल करन। नोइंग वेरी वेल दैट यू हैव एन एग्जाम टुमारो, मैं ज़्यादा टाइम ना लेंदे हुए आई से ऑल द बेस्ट फॉर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। कल मैं किते बैठा होया सी, मैनूं फोन आया सवेरे कि सूरज जी कित्थे हो? मैं सर मैं इंडिया है, मैं जलंधर है। कहते कल मेरी बुक करने तुसीं आ जाओ। तो मैं हाथ जोड़ के कहा मैं सर मैं पक्का हाजिर होवांगा। इत्थे आके पता लगा कि मेरे चीफ गेस्ट बनाया। आई थिंक मेरे रोल मॉडल तो खन्ना जी ने, मैं उन्होंने चीफ गेस्ट करके आई फील वेरी हंबल, क्योंकि असी इको एरिया में बिलोंग करते हैं। मैं DAV कॉलेज पढ़िया, मेरे सीनियर सी कॉलेज में, तो पिंड मेरा सिंबली है। मैं स्कूल पढ़िया टिल 5th। बड़ा दुख की गल है कि मैं स्कूल जाते रहे, साढ़े को कमरे नहीं होंगे रहे। असी अपना बस्ता चुकना, अपना एक टाट लैके जाते थे। टाट की मतलब बोरी टाइप, उन्होंने बिछा लेना, पढ़ लेना। जो बारिश आ गई तो घर भज जाना, घर नाल ही सीगे। सानू 6th क्लास में कमरा मिले सी, बैठने को डैस्क मिले। घर में रोल मॉडल नहीं, मेरे पेरेंट्स दोनों इलिटरेट सी, दोनों स्कूल फादर गए थे स्कूल, पार्टीशन तो बाद नहीं गए। कोई रोल मॉडल नहीं, कोई गाइड करने वाला नहीं सी। मेरी सिस्टर टीचर रिटायर हुए हेडमिस्ट्रेस, वो भी पढ़ने में तेज सीगे, तो मैं सिस्टर को देख के पढ़ता रहा। बाद में स्पोर्ट्स में आ गया, मैं स्कूल का कबड्डी का कैप्टन रहा, फुटबॉल का कैप्टन रहा। तो मेरे मामा जी सीगे सेंट्रल एजुकेशन ऑफिस जलंधर, उन्होंने मैंने कहा कि ये बच्चा शरारती है, इतने कोई अच्छा कॉलेज नहीं है, नवांशहर वगैरह गढ़शंकर छड़ दो, तुम जलंधर आ जाओ। तो मैंने जबरदस्ती चुक के जलंधर ले गए।
तो मेरी अटैचमेंट जिदा कहते ना बकरियां चारन वाले है कि पिंड वाला माहौल एक बखरा माहौल होंदा है, जिहड़ा सिंपल होएगा, लेकिन थानू कोई गाइडेंस वाला बंदा नहीं मिलता। मैं चले गया, अनफॉर्चुनेटली साडे स्कूल विच मेरे 6th स्टैंडर्ड तो लैके 10वीं तक कोई भी मैथमैटिक्स का टीचर नहीं सी। सानू सिर्फ एक टीचर पढ़ाते सी, वो साडे पिंड दे सीगे, वो ACT टीचर सीगे ड्राइंग वाले, जिन्हें सानू मैथमैटिक्स पढ़ाई ओनली अरिथमैटिक, और अलजेबरा नहीं पढ़ाया किसी ने। सानू A+B² किसी ने सिखाया नहीं टिल 10th। मेरा सेंटर बनया सड़ोआ, साडा स्कूल छोटा सी थोड़ा। मैं सिर्फ एक ही पेपर दिता मैथमैटिक्स का, A पेपर, B पेपर मैं नाम लिख के वापस आ गया, क्योंकि मैंने मैथ नहीं आता सी। DAV कॉलेज चले गए, एडमिशन कर दिता। मेरे मामा जी सोचे बहुत इंटैलीजेंट है, मैनू नॉन मैडिकल में पा दिता है। इंग्लिश नहीं आती सी, सानू सिखाया सी आई गोज़ टू द स्कूल। मेरे टीचर है, मैं नाम नहीं लवांगा, आई डोंट ब्लेम द टीचर, आई ब्लेम द सिस्टम फॉर दैट। टिल 10th आई वॉज पुटिंग ES विद गो, आई गोज़ टू द स्कूल। तो जो मैं गया कॉलेज, उत्थे सारे मेरे टॉपर ਜਿਹੜੇ पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 सी मिस्टर कौशल, वो चीफ सैकटरी रिटायर हुए ने थोड़े महीने पहले हरियाणा के। ही वॉज माई क्लासमेट। जो सारे अच्छी फैमिली के अच्छे कॉलेज पढ़ के बच्चे मेरे क्लासमेट थे। तो सानू बड़ा इन्फीरियरिटी कंपलैक्स है, ना तो सानू इंग्लिश बोलनी आती है, ना साड़ी ड्रैस सेंस है। तो असी लाइक जंगल में घूम रहे ना, तो वी वर लाइक नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। लैब में गए, एक टीचर है साडे रिटायर हो गए बाद में, सानू क्या लैब अटेंडेंट ने, तुसीं जी लैब कोट्स ला लो। लैब कोट एक्सपेरीमेंट वास्ते होंगे। उन्होंने कमेंट दिता कि ये सारे पेंडू गवार ने, ये 1 महीने बाद अद्धे दिखने नहीं इतने, मतलब कि 1 महीने बाद अद्धे छड़ जाएंगे नॉन मैडिकल। दैट वॉज द कमेंट दैट वॉज वेरी हर्टिंग फॉर मी टीचर। तो दैट वॉज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एनी आई स्ट्रगल्ड, आई कुडंट कोप अप विद द एजुकेशन देयर। मैथमैटिक्स पढ़िया नहीं, इंग्लिश मेरा मीडियम नहीं है, मैं पंजाबी मीडियम पढ़ के गया। एक दिन गुस्सा आया, मैंने लगा कि मेरे पेरेंट्स इन्ने अमीर नहीं है कि मैं धोखा देवांगा अपने पेरेंट्स को कि मैं साइंस पढ़ांगा। तो मैं सारिया किताबां चुकियाँ, मैं माईरागढ़ जाके अपनी किताबां बेच के वापस आ गया। तो मैं अपने आप ही सब्जेक्ट सिलेक्ट किए, मैं इकोनॉमिक्स सिलेक्ट की, पोलिटिकल साइंस, पंजाबी, इंग्लिश। उम्र नहीं होती। So once again, thank you sir, thank you so much, thank you everyone. Let's conclude now with national anthem.